फोर्टिस अस्पताल मानेसर के डॉक्टरों ने कॉन्गो की 44 वर्षीय महिला के स्तन से 5.4 किलोग्राम का विशाल कैंसरग्रस्त ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। 25-20 सेमी के ट्यूमर के साथ मरीज गंभीर एनीमिया, कुपोषण और संक्रमण से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने पहले संक्रमण नियंत्रित कर उनकी हालत स्थिर की, फिर जटिल सर्जरी और स्किन ग्राफ्ट के जरिए उपचार किया। बाद में मरीज को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी गई। My wife has the breast cancer, the right breast cancer, because I try to check online to know where I can book her for treatment, to make a good treatment. I have three possibilities, three choices. One, Germany, Turkish, and India. But because I'm a spiritual man, but I prefer India. But the culture, spirituality, and many things, don't I know that India, the culture is very high, and I choose India for this. ये है कि भारत का जो मेडिकल का जो है, it's getting better every day, and world class है, one of the best in the world. You can see we are far with the global. तो ये एक फर्क पड़ता है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर मानसी। I'm sure you would have seen some surgical pictures before, but ये थोड़ा सा देखने में disturbing image है. But unless you see this, you won't know कि patient किस agony में, किस problem में जी रही थी. So this was a tumor she was carrying for 6 months. December में she was diagnosed and she came to us in June. And 6 महीने से वो ये tumor लेके she was living her life with this. So we had to go in, we had to remove the entire tumor with full margins, because for her अगर हमने पूरा मतलब 100% कैंसर नहीं निकाला, so सिर्फ सर्जरी करके या सफाई करके we will not achieve anything, फिर से आ जाएगा कैंसर, फिर से ऐसा बन जाएगा to her as well. So what is important or what we need to understand about breast cancer is that it is the most common women cancer in India and across the world. But the problem in developing countries like ours, like Africa's, is that हमारे यहाँ पर है 0 से 4 सर्वाइवल रेट, मतलब अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो पेशेंट कितना जी सकता है, कितने % क्योर हो सकता है, वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। तो स्टेज 1 जिसमें 99% है, वहीं स्टेज 3 और स्टेज 4 में 65 और 22% हो रहा है। सो व्हाट वी वांट इज दैट वी शुड डायग्नोज सच पेशेंट्स इन स्टेज 1। कैसे 4 kgs, I would say more than a melon size. Next. And this was the amount of resection. जब हमने पूरा ट्यूमर निकाल दिया, ये एक ट्यूमर बेड बन गया था। ये मसल्स दिख रही हैं उसके पीछे। इतना बड़ा स्किन का जो डिफेक्ट है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करना भी चैलेंज है, which is called oncoplasty. So we don't have to just remove the tumor, we also have to give a aesthetic or cosmetic acceptable, and it is very apparent that we see a smile on her face now. Standing, walking on her own, working on her own, she's not dependent on anybody now, and she's ready to take on the next step of her treatment, whether chemotherapy, whether radiation therapy. So yeah, she will definitely patient जो कॉन्गो अफ्रीका से आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये केस थोड़ा पेक्यूलर इसलिए है क्योंकि इस लेडी को राइट ब्रेस्ट में शी हैड अराउंड 5.4 kg ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर, विच इज़ क्वाइट रेयर बिकॉज इट वॉज ओनली देयर इन द ब्रेस्ट। वो आगे ऑर्गन्स में, लंग्स में, लिवर में कहीं फैला नहीं था, बट पर्टिकुलरली ब्रेस्ट में ही एक आई वुड से वाटरमेलन के बराबर साइज इतना बड़ा ट्यूमर था। इट हैज़ गॉन टू द स्किन से फंगेटिंग मास की तरह बाहर आ रहा था, अल्सर जैसा बन गया था, पस आ रहा था उसमें से। इट वॉज फाउल स्मेलिंग, इट वॉज अ ह्यूज फंगेटिंग अराउंड 25 centimeter mass that this lady had. And on the very first consultation, if you would see her, she was debilitating, she was cachectic, underweight, malnutrition, anemic, not able to walk. She was on the wheelchair. If you see that this lady, you can see it in her eyes that she has lost hope for life. She was thinking कि अब यही मेरी life है। इस फाउल स्मेलिंग, फंगेटिंग, इतने बड़े मास के साथ में जो दिख भी रहा है ओवर क्लोज,
इसके साथ ही मुझे जीना है, जिसमें से ब्लीडिंग होता रहता है, बीच में ड्रेसिंग लगती है, पर फिर भी स्मेल कभी जाती नहीं है। So I saw her, we did our evaluation, we were able to know her lab values. Severe infection था इनको, 30,000 WBC count is too much count. इसका मतलब है जो नॉर्मल इन्फेक्शन की रेंज जो होती है, जो नॉर्मल WBC की रेंज हमारी बॉडी में होती है, वो 4,000 से 6,000 के बीच में होती है। इनको 30,000 थी। शी वॉज हैविंग सीवियर इन्फेक्शन, जिसको सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। दूसरा, ब्लड लेवल्स इनका एनीमिया था, ब्लड लेवल्स काफ़ी लो थे, ट्यूमर बर्डन बहुत हाई था। शी वॉज हैविंग ऑल द मार्कर्स अगेंस्ट, वर्किंग अगेंस्ट हर, सारे अगेंस्ट थे, बट ओनली वन फैक्टर वॉज वर्किंग टूवर्ड्स हर, दैट वॉज द पेट CT स्कैन। जब हमने पेट CT स्कैन किया, वी इवैल्यूएटेड, वी डिड द एंटायर वर्कअप, एंड उसमें ये लीजन जो आपको दिख रहा है, दिस ब्लैक लीजन, this is the tumor, and as you can see it is only in the breast. So luckily for her, ये breast cancer है, ये पूरे breast में फैल चुका था, breast बचा नहीं था, पूरा destroy हो गया था, skin से बाहर आ रहा था, foul smelling था, लेकिन ये और कहीं दूसरे organs में नहीं गया था, it has not spread to other organs, breast में ही सीमित था। This was the positive factor for her. This is when we decided that we have to go aggressive on her. We have to give her a second chance in her life. आज की हमारी कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही स्पेशल रेयर केस के लिए रखी है, जो ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर का है। ये महिला 44 इयर्स की अफ्रीकन लेडी कॉन्गो से हमारे पास में आई थी, एंड इनके ब्रेस्ट में काफ़ी ह्यूज, लगभग 25 सेंटीमीटर का, जो पूरे ब्रेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इतना बड़ा ट्यूमर था। एक स्किन में एक अल्सर की तरह, एक फंगेटिंग फाउल स्पेलिंग मास की तरह प्रेजेंट किया था। व्हेन शी केम टू अस, इनकी सिचुएशन, जो स्थिति थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। हाई ब्लड काउंट्स थे इनके, सीवियर इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया था, एनीमिक थी, वेट बहुत कम था, व्हील चेयर पे थी, चल भी नहीं पाती थी, एंड इतना बड़ा ट्यूमर था ब्रेस्ट में इनको। एंड इस कंडीशन के साथ वो 6 महीने से जी रही थी अपनी कंट्री में। सर्जरी में कितना टाइम? जब हमने इनको इवैल्यूएट किया, पेट स्कैन किया, हमें समझ में आया कि ये बीमारी कहीं शरीर में फैली नहीं है, हमने इनका सर्जरी प्लान किया। सर्जरी प्लान करने से पहले भी अपने चैलेंजेस थे हमारे लिए, क्योंकि इतने सीवियर इन्फेक्शन में, इतने सीवियर एनीमिया में सर्जरी कर पाना बहुत हाई रिस्क हो जाता है। सो विथ इस हाई रिस्क के साथ में सारा हमने प्रोटोकॉल फॉलो करके देन वी टुक हर फॉर सर्जरी। सर्जरी में लगभग 2 घंटे लगे थे हमें, जिसमें हमने पूरा ट्यूमर निकाला विद मार्जिन्स। मार्जिन्स मतलब हमें 100% ट्यूमर निकालना ज़रूरी होता है। तो पूरा 100% जब हमने ट्यूमर इनका रिमूव किया, वी फाउंड आउट कि ये 5.4 kgs का ये ट्यूमर था पूरा निकालने के बाद। एंड इतना बड़ा चेस्ट वॉल में डिफेक्ट, लगभग आधे चेस्ट वॉल में स्किन का एक डिफेक्ट भी बन गया था, विच नीडेड टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड। सो वी प्लान फॉर सेकेंडरी, मतलब 2 हफ्ते बाद हमने स्किन ग्राफ्टिंग प्लान किया। थाई से स्किन लेके हमने उस स्किन को कवर किया जो चेस्ट वॉल का डिफेक्ट था। एक विदेशी महिला को आपने ब्रेस्ट कैंसर से राहत दी, क्या कहना चाहिए? मेरे लिए तो विदेशी हो या हमारी देश की महिला हो, किसी भी महिला जिसको ब्रेस्ट कैंसर है उसको राहत देने, यही मेरे लाइफ का एम है, यही मेरा पैशन है। जब मैं सर्जरी कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने कई बार देखा कि महिलाएं जो है वो 100 टाइप ऑफ फैक्टर से उनको प्रॉब्लम होती है, एंड ये एक फैक्टर नहीं होना चाहिए कि वो मेल सर्जन थे इसलिए हम उनके पास में नहीं गए, इसलिए हमने महीने साल लगा दिए ट्रीटमेंट नहीं कराया। इसलिए मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ही बनूंगी, क्योंकि आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई लाइफ टुवर्ड्स ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया एंड एनीवेयर। कई बार रूरल एरिया में महिला ये सोचती कि कोई नहीं, ऐसी है, गैस की वजह है, वैसे कुछ और दिक्कत होती है, तो क्या कहना? कोई भी शरीर में गांठ है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकती है। शरीर में कोई भी गांठ आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना ही है। सिमिलरली ब्रेस्ट में कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं, गांठ है या स्किन में चेंजेस है, साइज में चेंजेस है, निपल से डिस्चार्ज है, ब्लड आ रहा है, बगल में कोई गांठ है, ये इग्नोर करने वाले सिम्टम्स नहीं हैं। अगर हम सही टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं तो हम उसका बहुत सही इलाज भी कर सकते हैं। 99% सर्वाइवल रेट्स होता है हमारे पेशेंट्स का जो स्टेज 1 में डायग्नोज हो सकते हैं। मतलब कैंसर डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जीते हैं एक बार अगर उनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, स्पेशली रूरल एरिया में।
क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज सुनते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि कैंसर होने से तो कोई बचता नहीं है, या कैंसर के इलाज में शायद आप ना झेल पाएँ, कीमोथेरेपी से शायद आप बच ना सकें। तो ये सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है। बहुत मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल है, पूरा इलाज इसका पॉसिबल है। इतने बड़े ट्यूमर को, 5 किलो से भी ज़्यादा ट्यूमर को, इतने फैली हुई बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं, तो छोटे ट्यूमर्स को तो हम बहुत बेहतर इलाज दे सकते हैं। समय पर इलाज न करने से क्या क्या बीमारी बन सकती है? कैंसर बैठने वाली बीमारी नहीं है। अगर हमने उसे सही समय पे ट्रीट नहीं किया, वो शरीर में फैलती है, लंग्स में, लिवर में जा सकती है, ब्रेन में, बोन्स में जा सकती है, और तब उस समय उसका इलाज कर पाना या उसको पकड़ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो सर्वाइवल रेट है या जो हम क्योर कर सकते हैं, वो स्टेज 1 में जहाँ 99% है, वहाँ स्टेज 4 में वो 20-25% हो जाती है, इतना कम हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स जो हैं वो सतर्क रहें, अवेयर रहें, सही टाइम पे इलाज करा सकें, ताकि हम उनको अच्छी लाइफ दे सकते हैं बाद में। सर्जरी के बाद क्या दोबारा होने के चांस? सर्जरी में भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पूरा ब्रेस्ट निकाल के सर्जरी होगी, या ब्रेस्ट बचा के भी हम कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट बचा के जब हम सर्जरी करते हैं तो क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि क्योंकि हमने ब्रेस्ट छोड़ दिया, इसमें बीमारी वापस तो नहीं आ सकती। बट विद ऑल द रिसर्च, इतने सालों की रिसर्च के बाद में हज़ारों, मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर स्टडीज़ होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन मतलब ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करना भी सेफ़ है। कैंसर का वापस आना एक रिस्क होती है, लेकिन वो टाइप ऑफ सर्जरी से इतना डिपेंडेंट नहीं है। कि दवाइयाँ क्या लाइफ टाइम चलेगी या फिर कुछ टाइम तक, जब तक ये सर्जरी? सिर्फ कुछ टाइम तक इनका इलाज चलेगा, उसके बाद इनको फॉलोअप में रहना होगा कि 6 महीने में, साल में ये हमारे पास आते रहें, हम टेस्ट करते रहें, दैट्स इट।